Hello everyone, this is 10th part of Basic to Advanced English. As I started the series Basic to Advanced, so we have discussed so many things from zero level to Advanced English. So today I would be teaching you some kind of words. So today we will be discussing some sentences, some words which are really commonly used in spoken English. So I would like to let you know until, unless and lest. These three words we will be discussing today. So let's start with the until. When we use until, कभी सब क्वेश्चन आप मन में आए होंगे until use कब करते हैं. So let's take some instances, then we can start this video. So we can take some instances like that. मैच स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक बारिश नहीं रुक जाती. जब तक बारिश नहीं रुक जाती. जब तक, जब कहीं कहीं पे किसी भी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आपका जब तक नहीं, तब तक नहीं, ये सेंटेंस आते हैं तो हम यूज करते हैं until. मैच स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक बारिश नहीं रुक जाती. तो जब तक नहीं, तब तक नहीं, यहां हम लगाते हैं until. तो until rain stops, match can't be started. Until rain stops, match can't be started. इस सेंटेंस को आप रिवर्स वर्ब भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो. मैच can't be started until rain stops. तो until वर्ड यूज करते हैं जब तक नहीं, तब तक नहीं. तो उसको कहेंगे आपसे बात नहीं करेगी जब तक आप उसे सॉरी नहीं कहोगे. वह आपसे बात नहीं करेगी जब तक उसे सॉरी ना कहो. Until you say sorry, she won't talk to you. Until you say sorry, she won't talk to you. इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हो. She won't talk to you. She won't talk to you until you say sorry. She won't talk to you until you say sorry. जब तक सॉरी नहीं बोलोगे, जब तक आपसे बात नहीं करेगी आपसे. तो जब तक नहीं, तब तक नहीं, तो हम until वर्ड का यूज करते हैं. मैं शादी में नहीं जाऊंगी जब तक जिया मुझे नहीं बुलाएगी. ये शादी में नहीं जाएंगी जब तक जिया नहीं बुलाएंगी. तो जिया इनकी फ्रेंड है, वो शादी में नहीं जाएगी, बुलाएगी नहीं तो जाएंगी नहीं जाएंगी. तो I won't go in marriage until Jia invites her. I won't go in marriage until Jia invites her. Similarly इसको और चेंज कर सकते हो, पहले until भी लगा सकते हैं आप लोग. Until Jia invites her, she won't go in marriage. Until Jia invites her, she won't go in marriage. आप देखें सेंटेंस में गा गी आ रहा, मतलब फ्यूचर यूज करेंगे आप, लेकिन इसमें इफ का सिस्टम फॉलो होता है. until वाले सेंटेंस में will का यूज नहीं करते हम लोग. We always use first present sentences with until. So until Jia invites her, she won't attend wedding or she won't go in marriage. ऐसा बनाएं. हम जब तक खेले जब तक अंधेरा नहीं हो गया. We played until it got dark. इसको आप दूसरे किस बना सकते हो. Until it got dark, we played. Until it got dark, we played. तो we played until it got dark. हम खेलते ही रहे, हम खेलते रहे, तो we kept playing. हम खेलते ही रहे जब तक अंधेरा ना हो गया. We kept playing until it got dark. We kept playing until it got dark. जब तक नहीं, तब तक नहीं, तो until वर्ड का यूज कर सकते हो आप इस काम करने. सर हाउ टू से आप यहीं रहना जब तक मैं ना आऊं. आप यहीं रहना जब तक मैं ना आऊं. You stay here until I come back. You stay here until I come back. या बोल सकते हो until I come back, you stay here. Previously we discussed until. Now let's discuss use of unless. Unless का यूज कब करोगे? So take some example, then I will. मैं ये स्कूल छोड़ दूंगी अगर आपने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो. अक्सर टीचर्स के हमेशा कंप्लेन रहती है, मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा अगर उसने मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो. मैं एक कंपनी छोड़ दूंगा अगर उसने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो. अगर नहीं तो if he doesn't, if I don't, if she doesn't, if I don't, ये भी यूज कर सकते हो. लेकिन ये if की जगह हम unless वर्ड का यूज कर सकते हैं. I will quit my job, I will quit this school या I will quit my job unless he increases my salary. I will quit this job unless he increases my salary. अगर मुझे सैलरी नहीं बढ़ाएगा तो मैं जॉब छोड़. अगर आपके पास नहीं होगा तो आप थिएटर में प्रवेश नहीं कर सकते. हाँ, आप थिएटर में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आपके पास पास नहीं होगा तो बोल सकते हो पास नहीं है आपके पास, तो you can't enter in theater. You can't enter theater unless you have pass. You can't enter theater unless you have pass. You have pass. उसी तरीके से आप कहीं भी जा रहे हो, भैया रुक जाओ, सब्र करो भैया, ऐसे बिना पास के आप अंदर नहीं जा पाओगे. तो hold your horses. Hold your horses. सब्र करो, रुको, डांट खाओ, यहीं पर रुको यार. तो hold your horses. You can't enter theater unless you have pass. अगर पास पास नहीं है तो आप एंटर नहीं कर सकते. तो unless you have pass, you can't enter theater. आप unless पहले भी लगा सकते हो. Unless you have pass, you can't enter theater, या फिर you can't enter theater unless you have pass. सर तेरी शादी में नहीं आएंगे अगर तू उन्हें इनवाइट नहीं करेगी. सर शादी में नहीं आएंगे और तू इन्वाइट नहीं करेगी. ये भी आई थिंक जिया के बारे में बोला जा रहा है.
ये सेंटेंस भी हो सकता है, कोई जिया इनकी फ्रेंड होगी। तो सर इनवाइट, सर आपकी शादी में नहीं आएंगे अगर आप इनवाइट नहीं करोगे। तो सर वॉन्ट कम इन योर वेडिंग, सर वॉन्ट विल नॉट को शॉर्ट ऑफ वॉन्ट बोलते हैं। सर वॉन्ट कम इन योर वेडिंग अनलेस यू इनवाइट हिम, सर वॉन्ट कम इन योर वेडिंग अनलेस यू इनवाइट हिम। तो यदि नहीं, अगर नहीं, अनलेस यूज कर सकते हैं मैं आप जॉब लोग। पे आती अगर मैं बीमार ना होती। मैं जॉब पे आती अगर मैं बीमार ना होती तो आई वुड बी देयर एट माई वर्क, आई वुड बी देयर एट माई वर्क अनलेस आई गेट इल, आई वुड बी देयर एट माई जॉब अनलेस आई गेट इल। आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। आपको जॉब नहीं मिल सकती अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कांट गेट जॉब अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस, या अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस यू कांट गेट जॉब, अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस यू कांट गेट जॉब। कहीं कोई मेरी कहानी पर शक ना करे इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई। कहीं कोई मेरी कहानी पे शक ना करे, ना कोई कहानी लिखी है, कोई शक ना करे, ये ट्रू स्टोरी है, इसलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आई ओरिजिनल। लेस्ट एनीवन शुड डाउट माय स्टोरी सो आई हैव ब्रॉट ऑल द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। लेस्ट, तो लेस्ट वर्ड यूज कर सकते हो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए। लेस्ट इट शुड हैपन, लेस्ट इट शुड हैपन, इसको यूज कर सकते हो आप लोग। तो इसमें इट शुड हैपन वो चीजें चेंज होती रहेंगी, यहाँ पे लेस्ट इट शुड हैपन और सीधा बना सकते हो। यहाँ पे नहीं के लिए नॉट मत लगाइएगा, लेस्ट इट शुड नॉट हैपन, ये गलत हो जाएगा। तो लेस्ट इट शुड हैपन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेस्ट एनीवन शुड डाउट माय स्टोरी सो आई ब्रॉट ऑल द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सो आई ब्रॉट ऑल द अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विद मी। सर हाउ कैन वी से शांत रहो कहीं सर ना सुन ले। शांत रहो कहीं सर ना सुन लें। कीप क्वाइट लेस्ट सर शुड लिसन यू, कीप क्वाइट लेस्ट सर शुड लिसन यू, या हियर यू बोल सकते हो। तो शांत रहो, धीरे बोलो, कम बोलो, तो लेस्ट सर कीप क्वाइट लेस्ट सर हियर लिसन यू, ऐसे भी बना सकते हो। लेस्ट यूज एड्रेस करते ठीक से लिखो कहीं ऐसा ना हो कोरियर कहीं और चला जाए। हो। एड्रेस ठीक से लिखो कहीं ऐसा ना हो कुरियर कहीं और चला जाए। राइट डाउन एड्रेस प्रॉपरली, राइट करेक्ट एड्रेस या राइट डाउन एड्रेस प्रॉपरली, लेस्ट कुरियर शुड गो समवेयर एल्स। राइट डाउन एड्रेस प्रॉपरली अदरवाइज लेस्ट कुरियर शुड गो एनीवेयर एल्स। कहीं ऐसा ना कुरियर कहीं और चला जाए, तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ऐसा हो, तो लेस्ट वर्ड का यूज कर सकते हो आप लोग। और इट शुड हैपन लगा सकते हो, इट शुड एक्शन लगा सकते हो। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, घूमना बंद करो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ। घूमना बंद करो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, घूमना बंद करो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। यू कैन कमेंट below and practice this sentence now. 10th part of basic to advanced English. So we have discussed already 9 parts. I would give you link in below and you can learn those sentences also. These are some vocabulary which are commonly used in spoken English. So you can watch all the parts and you can improve yourself. So English सीखने में waste your English. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.